Dear student, welcome in class English speaking. Now I am with you for you in English speaking class. And today we are starting a new class and new sentences. So keep learning with us. चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक प्रेस बटन कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया बेहतरीन करके लाऊंगा। इतना मेरा आपसे वादा है। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। डेली रूटीन्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बोला जाए। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में जो डेली रूटीन्स के सेंटेंसेस है उन पर चर्चा करते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। ये एक पक्की सड़क है। ओके डियर स्टूडेंट, ये एक पक्की सड़क है। सपोज दैट in the walking time when two students meet and two persons meet, they talk to another. Then about the road, this is a metal road. What is the meaning of पक्की सड़क का मतलब क्या होता है? metal road. Have you understand? Dear student, here now you can see this is a metal road. Have you understand? This is a metal road. And we will talk about the next sentence. So next sentence is ये एक कच्ची सड़क है। ओके, राइट करिए, ये एक कच्ची सड़क है। देन इन द मेटल्ड के साथ में अन प्रीफिक्स लगा दिया जाएगा। देन इट विल द अपोजिशन ऑफ द मेटल, देन इट इज अनमेटल रोड। कच्ची सड़क कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन learn these type of the sentence. Suppose that this is new one sentence for us, that गिलास को उल्टा कर दो। Suppose that someone has ordered to anyone, गिलास को उल्टा कर दो, then you can speak in English, own English. Turn the glass upside down. Turn the glass upside down. What will the translate of this sentence? गिलास को उल्टा कर दो। As well as the sentence will, बाल्टी को उल्टा कर दो। तो turn the bucket upside down. What will the new sentence? गिलास को उल्टा कर दो की जगह पर ऐसे हमारे साथ में आ जाए, जग को उल्टा कर दो। तो turn the jug upside down. Okay, next sentence, as well as गिलास को उल्टा कर दो। As well as this sentence we can use in our words, that बाल्टी को उल्टा कर दो, then sentence will turn the bucket upside down. Have you understand well? According to this sentence, you can write in your own purposes differently. Different sentence you can use your own words. So dear friends, next sentence, आप मेरे कौन हो। ओके, व्हाट इज द न्यू सेंटेंस वन? आप मेरे कौन हो। तो यहां पर हु आर यू, डियर स्टूडेंट, हियर हु आर यू टू मी, देन the conjunction of to
will use here. Okay, have you written this? I hope that you have written it for your future also, because English is for practice. If you will not practice, then you cannot speak English properly. Otherwise, many a student think in their mind that English can be learned. But I think English cannot be learned. English is being come by practice. So that's why you should use in your own tongue. Only by reading you cannot learn English. Your English should be getting fluence by the speaking, and completely again and again you will try up and speaking properly. Although in few days there may be some errors, but don't forget, today we are getting more and more errors, but after few days, after some days, we will speak a fluency English with correctly, because we will know that what are the error with us. So you should keep learn. It's after the next sentence. We will reach on next sentence then. आपने किताब उल्टी पकड़ रखी है. आपने किताब उल्टी पकड़ रखी है. The sentence will, suppose that ये सेंटेंस होता है आपने किताब उल्टी पकड़ रखी है. आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे. आपने किताब उल्टी पकड़ रखी है. You have held the book. You have held the book upside down. अपसाइड डाउन यानी अपसाइड जो थी वो आपने नीचे की तरफ उल्टी करके पकड़ रखी है. Have you done it? Have you understand well? And according to the किताब, इस किताब के अनुसार, यानी किताब जो है वैसे ही आप डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं. At the place of book you will place a different meaning, then it will change the sentence. ये सेंटेंस को चेंज कर देगा. तो you have held the book upside down. सपोज दैट यहां पर किताब की जगह पर कुछ ऐसा लेटर होता है, पत्र होता है, आपने पत्र उल्टा पकड़ रखा है, तो you have held the letter upside down. Have you understand? Yes. तो you can write in your own words at the place of किताब. किताब की जगह पर आप शब्द को चेंज कर देंगे. पत्र लिखेंगे. पत्र के बाद में अगर आपने कोई नोटबुक है, नोटबुक, तो नोटबुक लिखेंगे. हैव यू अंडरस्टैंड? नोटबुक. आपने नोटबुक उल्टी पकड़ रखी है. आपने पत्र उल्टा पकड़ रखा है. आपने कार्ड उल्टा पकड़ रखा है. आपने निमंत्रण पत्र, इनविटेशन जो कार्ड होता है, वो उल्टा पकड़ रखा है. आपने निमंत्रण पत्र उल्टा पकड़ रखा है. Have you got it? I think in my mind that you will get soon your English. Next sentence, you will get soon your English. And next sentence will, आपने उल्टी शर्ट पहन रखी है.
सपोज दैट आपने उल्टी शर्ट पहन रखी है, या सेंटेंस विल आपने शर्ट उल्टी पहन रखी है, यू हैव पुट ऑन, देन देखिए पहनना एक शब्द होता है, पहनना आप जानते होंगे शायद, WEAR, देखिए वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, लेकिन यहां पर आया है पुट ऑन। ओके, यू हैव पुट ऑन द शर्ट इनसाइड डाउन। अब देखिए शर्ट के लिए इनसाइड डाउन आया, इनसाइड डाउन, इनसाइड, इनसाइड अंदर की तरफ को बाहर की तरफ करके पहना, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, क्या यूज किया, इनसाइड डाउन। उल्टी शर्ट पहन रखी है, तो उल्टी शर्ट कैसे इनसाइड की है, वो बाहर की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि हम नीचे की साइड को ऊपर की तरफ पहन लें, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। देन अंदर की तरफ का जो है मैटर वो बाहर की तरफ आ जाए, और बाहर वाला मैटर अंदर की तरफ पहुंच जाए, बाहर वाला पोर्शन अंदर की तरफ हो जाए। कपड़े जैसे उल्टे होते हैं, ऊपर की साइड नीचे की तरफ हो जाती है, तो इसको बाल्टी की तरह यूज नहीं करेंगे, अपसाइड डाउन नहीं करेंगे, इनसाइड डाउन करेंगे इसको। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? यस, इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी विल स्पीक, वी शैल स्पीक, काश मैं एक लड़की होता। तो देखिए ये सेंटेंस है, इफ, देखो काश में एक लड़की होता, आई विश आई वर ए गर्ल। काश, काश मतलब होता है इच्छा करना, एक कल्पना करना, क्या करना, कल्पना करना, इच्छा करना। तो इच्छा करने की जो, इच्छा करने की जो स्पेलिंग होती है यहां पर आई विश, व्हाट इज द इंग्लिश, आई विश आई वर ए गर्ल। हैव यू अंडरस्टैंड? I wish I were a girl. Okay? According to this sentence, you can write in your own words, काश मैं एक गिटारिस्ट होता। What is the meaning of guitarist? जो गिटार बजाते हैं, परफेक्टली गिटार बजा लेते हैं, उसको हम कहते हैं गिटारिस्ट। Have you understand? Then, according to this series, काश मैं एक लेखक होता है। I wish I were a writer. I wish I were a doctor. I wish I were a compounder. I wish I were an engineer. Okay. I wish I were a teacher, painter. So you can write these type of the word, these type of the sentence, 10 sentence. Have you understand? Dear student, you should write that type of the 10 sentence of each. Okay, 10 sentence of each sentence you will. Okay, dear friends, देखिए अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। नाउ वी get on reach the next sentence. Suppose that this sentence is very useful and very usable sentence. Then what is the sentence? काश मेरे पास पैसे होते। देखिए ये सेंटेंस आपको बोलने में डेली आ जाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसका हमको डेली काम पड़ता है, डेली हमको यूज करना पड़ता है पैसा। तो आई विश आई हैड मनी, व्हाट इज द ट्रांसलेशन of this sentence? I wish I had a money. Okay, I think you will understand. Then next in the list we have written more and more sentence here which are spoken by people in daily routine. So in this series, the next sentence will, काश मैं वहां जा सकता। देखिए ये एक इच्छा है, कल्पना है और डिजायर है कि काश
ऐसा होता कि मैं वहां जा सकता, देन व्हाट विल द ट्रांसलेशन? आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई विश आई कुड गो देयर। काश मैं वहां सो सकता, यू कैन राइट हियर, जाने की जगह पर सो सकता। काश मैं वहां बैठ सकता, काश मैं वहां तैर सकता, काश मैं वहां खा सकता। देखिए, इस टाइप के सेंटेंस यू कैन डिफरेंटली यूज, देन इट विल improve your own English. Okay, you should change the action verb here. You could change, when you will change the action verb here, then totally different sentence you will get. You will get totally different sentence if काश मैं वहां जा सकता, काश मैं वहां जा सकता, आई विश आई कुड गो देयर। हैव यू अंडरस्टैंड? Okay, have you understand well? At the place of jana, you can use the different action verb here. Okay, friends. अभी आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इंग्लिश अच्छी करने वाला हूँ, सुधारने वाला हूँ। डोंट वरी ऑल अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ only this is talk about the practice only. This is matter about the practice. If you will practice with me, then your English improve again and again and very soon. Okay, and here the next sentence will, वो अपनी मर्जी का मालिक है। आपने देखा होगा कि ये सेंटेंस बोले जाने वाले हैं। ये सेंटेंस डेली की रूटीन में बोले जाने वाले हैं। स्टूडेंट, यू कैन स्पीक इन योर ओन वर्ड्स, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। ओके, देन आई हैव माई ओन वेज, आई हैव माई ओन वेज, माई ओन वेज। ओन वेज मीन्स होता है स्वयं के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओन? मीन्स होता है स्वयं के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।